क्या बोर्ड नहीं दिख रहा है? To avoid exposure, कॉर्नर में चले जाओ ना। बोर्ड को नहीं हिला सकते, हम देख सकते हैं। अभी दिख रहा है? पक्का? तो थोड़ा ऐसे लिखो। एयरबोर्न, वेक्टर बोर्न और वाटरबोर्न, तीन टाइप के डिसीज से हमें अवॉइड करना है कि we don't get affected to it in any way. Okay? These are the general measures. मतलब आप इसके लिए क्या कर सकते हो? चलो, मैंने पहले लिखा है to avoid exposure to airborne bacteria. तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? क्राउडेड जगह पे नहीं जाना है. ओके, वी आर नॉट सब्जेक्टेड टू गो टू क्राउडेड प्लेसेस. जो कोरोना में बोलते हैं ना, भीड़ वाली जगह पे मत जाओ. नाउ कम्स वाटरबोर्न माइक्रोब से आप लोग सावधानी बरतो. कैसे? भाई वाटरबोर्न माइक्रोब, sorry, we should not drink dirty water. Yeah. So rather I'll say in affirmative way, we should drink clean water. If you are getting water which is not hygienic, kindly boil it, filter it. Okay, it will be clean and up to drink. Understood? Yes, ma'am. Next is vector-borne infection. Yeah, but vector-borne diseases which we are talking about, they won't occur if you have clean environment. अब देखो, perfect season है to explain this disease. बारिश होती है या हो रही होती है, तब हम क्या करते हैं? हम जब नीचे क्लास से खड़े रहते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पडल है, ठीक है, फिर भी हम उसके आसपास होते हैं. उसके आसपास. Yesterday only this happened with me that one of the parent, when I left the another branch, so one of the parent was just standing near the puddle. So when I went there, that puddle was already there, right? And when mosquito resides into puddle, you can see little bit of bubble coming or activities happening. It's not a still water. So I saw it already because as I went early, I had nothing to do going upstairs. So I was wondering that kitna ganda hai. ठीक है? So I requested that particular parent not to stand near this puddle. Why? Because AMC with the statistic what it's giving, these days typhoid and dengue or let's say that chikungunya is increasing around us. So our environment, whenever the rain comes near our house, also we should be maintaining कि जो पानी होता है ना उसको spread कर. Spread करने से क्या होगा? आपने chapter 1 में पढ़ा था. If you give water more surface area, it will evaporate. तो clean हो गया environment आपके घर पे, so mosquitoes नहीं होंगे. कचरा है अगर भर के नहीं रखते हो तो उसको एलिमिनेट करो, बाहर जाने दो, वरना उधर मस्किटोस, फ्लाइज वगैरह सब ब्रीड करेगा. So these are the general ways how you can keep your environment clean. अच्छा, इसके अलावा next is immunization.
गाइस इम्यूनाइजेशन में क्या होता है नॉर्मली, इफ यू सफरिंग फ्रॉम लेट्स से कोल्ड एंड कॉफ, तो जैसे अभी कोरोना है तो हाँ वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, तो वैक्सीनेशन सिंपली इंक्रीजेस द इम्यूनिटी, अंडरस्टूड? Vaccination simply increases the immunity. So if your immunity is strong, no disease is going to attack you, and if it does, then you'll be able to survive क्योंकि हमारा immunity ही उससे fight कर लेगा, right? So this is the one way of preventing the disease. The second way is that if the disease has been raised by bacteria, then one can make a vaccination of it, and we can take a vaccination. ठीक है, जैसे स्मॉल पॉक्स की लेते हो आप लोग ने बहुत सारी वैक्सीनेशन, पोलियो की ली हुई है, अभी नाम या मीजल्स की ली हुई है, हेपेटाइटिस बी की ली हुई है. So there are many vaccinations which have already been taken when you were small kids. Okay. अच्छा, वैक्सीनेशन का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मैंने बताया है व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड द वर्ड वैक्सीनेशन एंड हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. Okay, how many of you know in this class how vaccination came into existence? No one? उस क्लास में कौन बैठता है? How many students used to sit over there? उधर मैं बता चुकी हूँ, आप लोगों का ध्यान नहीं होगा. अच्छा, I'll tell you. Basically, एडवर्ड जेनर का स्टोरी बताया था ना, काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का. हाँ चलो कोई बात नहीं, सुन लो. एडवर्ड जेनर करके साइंटिस्ट थे. अब उन्होंने देखा कि उनके वो जहाँ पे रहते थे सब जगह स्मॉल पॉक्स हुआ, लेकिन टू द मिल्क मेड्स, जो मिल्क निकालते हैं ना काऊ या बफेलो में से, उनको नहीं हुआ था ये स्मॉल पॉक्स, रादर दे वर अफेक्टेड विद द काऊ पॉक्स. मैम मैम मैम, इट्स मैम मेरा पेपर. या सो उनको नहीं हुआ था, मिल्क मेड्स जो थे ना उनको ये काउ पॉक्स नहीं, अरे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था. इंस्टेड व्हेन तो देखा गया कि क्यों नहीं हुआ है, तो वो पता चला कि उनको काउ पॉक्स हुआ है. काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं भाई बहन, ठीक है. सो क्या बोला, काउ जो होता है ना उसका एंटीजन लिया गया. अब काउ जो होता है मतलब ब्लड का एक सैंपल लिया गया, एंटीजन इज अ पार्ट ऑफ अ ब्लड which helps to protect us from the disease and increases the immunity. Okay, so cow को लैटिन में बोलते हैं वैका, VACCA, वैका, राइट. एज काउ में से वो एंटीजन लिया गया था और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन बनाई गई उसमें से और सबको दी गई, और फिर किसी को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ. सो इसीलिए फिर वैक्सीनेशन नाम पड़ा. अंडरस्टूड? आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया गया है. जनरली एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन. सो दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल टू आंसर. मैंने दोनों कॉन्सेप्ट समझाए, वैक्सीनेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है, ठीक है. बट आपको उसका डिफरेंस क्या है ना वो आंसर करना है, नॉट इन दिस लेक्चर, इन नेक्स्ट लेक्चर लिख के लाना है, ठीक है. होमवर्क लिख लो, डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. यस बेटा, तो हाँ आपको अगर पास करते ना बेटा.
अच्छा, see, you don't have exact बस you don't have exact symptoms of exact diseases, but still मैं बोल रही हूँ, आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक में से डेफिनेशन ढूंढना। Ma'am, your voice is coming little low. या बेटा, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन का डिफरेंस बताना है, ठीक है। चलो, अब हम बात करेंगे डिसीजेस की और उसके सिम्टम्स की और उसका प्रिवेंशन की। ओके, आप लोग को लगता है कि मुझे ये डिसीज के बारे में लिखना चाहिए, आई स्पीक वेदर इट इज इम्पोर्टेंट और नॉट, आस्क्ड इन एग्जाम और नॉट, उसका तो मैं सामने से बोल दूंगी आप लिख लो, वन वर्ड ही लिखना होता है, जैसे सिम्टम द कॉमन कोल्ड फीवर ऐसा, ठीक है। प्रिवेंशन लिख सकते हो। वी स्टार्ट विथ मलेरिया। मलेरिया का कॉज क्या है? नाम नाम आगे, हाँ, एनोफिलिस मस्कीटो, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। ओके, बेसिकली उसमें क्या होता है, पैरासाइट कौन सा होता है, पहला लेक्चर में मैंने ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया था, उसमें लिखा था। और वो डायग्राम मैंने मना किया था आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए। पहले लेक्चर में मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया था, मॉस्किटो कैसे इन्फेक्ट करता है वो बताया था, पर मैंने बोल, हाँ तो बोलो, है ना, तू बोलो आंसर उसमें से। हाँ बस 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 बस, पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, ठीक है। सो सिम्टम्स क्या होते हैं, देखो बेटा, इसके ना दो स्टेज होते हैं, एक होता है कोल्ड स्टेज, एक होता है हॉट स्टेज। कोल्ड स्टेज में क्या होता है, जब ठंडी लगती है ना तब फीवर होता है, शिवरिंग होता है, so कोल्ड स्टेज सिम्टम्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हॉट स्टेज में रेस्पिरेशन comes like वो डिफिकल्ट हो जाता है टू रेस्पायर, योर हार्ट बीट्स इंक्रीजेस, ये हॉट स्टेज में होता है। जैसे आपको गर्मी थकान लगती है तो आप कैसे, you start like breathing very heavily, so that is what happens actually. प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, गली गली मॉर्टिन लगा दो, है ना, मॉर्टिन लगा दो, ऑल आउट जला दो, और रह जाता है तो फिर मॉस्किटो स्प्रे लेके बैठ जाओ मॉर्टिन का, हाँ आधे लोग रैकेट से काम चला लेंगे, है ना। अच्छा, वैसे ये सब एक्चुअली बोला जाए तो यू कैन डू इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारी जो ओडोमस आती है ना, इंसेक्ट, उसे हम ओडोमस नहीं लिख सकते, वी हैव टू राइट इट इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम। इंसेक्ट को रिपेल, रिपेल मतलब अलग करने वाली क्रीम, सो वी कैन अप्लाई दैट। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, अच्छा आपको पता है केरोसिन ऑयल होता है ना, केरोसिन ऑयल से मस्कीटो भाग जाते हैं, तो काफी लोग ना अपने घर में केरोसिन का पोछा लगवाते हैं, so swiping the floor with kerosene oil can help a lot। बेटा वो लोग ना आते जाते रहेंगे, तुम्हारा परमिशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो फोकस हियर, ठीक है, वरना ऐसा होगा नेक्स्ट लेक्चर से लड़कियां इधर होगी तुम लोग उधर हो, એવું કરી લાય છે થઈ જાવ કો ના ના થઈ જા ત્યાં કોર્નરમાં જગ્યા છે, હોશિયારી મારવાની જ નહીં અહીંયા તો। Okay, apart from that we can always add insecticides to such area, जैसे पड़ल है ना तो उसमें आप DDT डाल दो, that is डाइइथाइल डाइक्लोरो टेट्राक्लोरिन, पर ये नहीं पढ़ना है आपको, आप सिंपली चार जो मैंने बताया ना वो ऑप्शन देखो प्रिवेंशन। फर्स्ट इज insect repellent, you can use insect repellent sprays, then we have Mortin all out, then apart from that हम क्या कर सकते हैं, we can keep our environment clean, right, kerosene oil के पोछे डलवा दो, so all these things you can write।
See, what discussion I am doing is pretty much common to you. Okay. Then comes ये था प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ से डिसीज कॉज करने वाला. अब आता है वायरस. वायरस से क्या होता है? तो एक बात याद रखना, वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है. कोरोना, इन्फ्लुएंजा, ये सब इसी से होता है. तो उसमें हम क्या मतलब क्या होता है उसमें? नाक बहने लगता है, सिर दुखता है, राइट? तो इसका कंट्रोल कैसे करें? कोरोना है तो वैक्सीन ले सकते हो, बाकी के लिए तो एंटीवायरल ड्रग्स आते हैं, तो वो नॉर्मल स्टांस में वीकली एक बार या मंथली एक बार लोग कोर्स कर लेते हैं ताकि सर्दी खांसी ना हो उनको. सो दैट कैन बी डन. और कुछ नहीं. और फिर रेस्ट करो, और कुछ नहीं कर सकते. अब आता है जॉन्डिस. यस, हेपेटाइटिस ए. जॉन्डिस में क्या होता है? हाई टेम्परेचर, वीकनेस, यू कैन ईट, इट्स वॉमिटिंग, lot of things will happen, urine will turn dark, I mean pale yellow, आप खुद भी pale yellow लगने लगोगे. तो इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे? पानी पियो तो क्लोरीनेटेड वाटर ही पीना है. You have to drink chlorinated water. Second option is, then आता है हाँ, हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, वो ले लेना चाहिए. मैंने तो लिया था तो भी हुआ था. अच्छा, अगर हो जाता है तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, गुड़ खाते रहो. इफ कंट्रोल मेजर, इफ एट ऑल हो जाता है जॉन्डिस, तो ईट जैगरी. द सेकंड इज टू रेस्ट, एंड थर्ड इज टू कंज्यूम प्रोटीन एंड फैट लिमिटेड. प्रोटीन और फैट जो लिवर डाइजेस्ट करता है ना, उसको खाना कम कर दो, क्योंकि लिवर वीक हो जाता है इससे. So it cannot digest your fats and protein. हल्का खाना खाना है, not by weight, but in terms of fat. डाइट फूड आ जाएगा. अब आता है रेबीज. रेबीज जो होता है उसमें क्या होता है? डॉग बाइट से होता है. तो क्या होता है? मैं आई टेल यू, डॉग्स हैव अ फोबिया टू बाथ. है क्या पागल मैम? कुत्ते से होता है. फिर एक मिनट, पागल कुत्ते से होता है नॉर्मली. मंकी से कई बार देखा गया है. एंड या दैट्स इट, दो ही से देखा गया है अभी तक. और ऑर्गेनिजम्स के सिम्टम्स. मंकी ले लो, मंकी ले सकते हो. फिर कैट, मतलब जो एनिमल ना आपको बाइट करते हैं, जैसे कैट भी कई बार बाइट कर देती है. इवन रैबिट्स डू दैट. ओके, पर ज्यादातर पागल कुत्ते ही काटते हैं. तो क्या होता है? हाइड्रोफोबिया. डॉग्स आर वेरी बैड. इवन मंकीज. मंकी आता है ना घर में, भगाना है ना तो पानी डालो. हाँ, सामने आएगा तो मेरे को मत बोलना, पर उसको पानी नहीं पसंद. सो दे ट्राई टू रन अवे फ्रॉम वाटर. सो इज डॉग. अब अगर तुमको काट लिया बचपन में तो यू गेट हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी से बचाओ, पागल हो जाते हैं. हाँ, तो करना क्या है? कर तो कुछ नहीं सकते, डॉग से दूर रहा करो. और उनकी जो सलाइवा है, अगर आप मतलब इफ यू आर ऑलरेडी बिटन बाय इट और सलाइवा है, तो ट्राई टू वाइप इट ऑफ एज सून एज पॉसिबल. डोंट लेट इट पेनिट्रेट इन योर बॉडी. गेट वैक्सीनेटेड. ऑब्वियसली डॉक्टर इंजेक्शन की कोर्स करवाते हैं. हाँ, पहले अभी 3 इंजेक्शन स्टमक में लेने पड़ते हैं, लेकिन पहले 14 इंजेक्शन थे. 14 इंजेक्शन. यस. एंड नॉर्मली उसके ट्रीटमेंट को बोलते हैं प्रेशर ट्रीटमेंट. प्रेशर ट्रीटमेंट जो आपको नहीं लेना है दिमाग में, नॉलेज के लिए. ठीक है, तो अभी तो 3 लेते हैं, बीच में 5 थे. Like before 5 years or 6 years, if I talk, 5 injections were there. Now there are 3. Okay, now comes AIDS. Important. AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. Okay, it's been caused by human HIV deficiency. आता ही नहीं है. आता है? नहीं आता?
बोलो ह्यूमन इम्यूनो, हाँ देख के मत बोलना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, हाँ तो दैट इज इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी कम कर देगा, दोनों में यही सिम्टम्स है कि वो इम्यूनिटी को कम कर देगा। अब अगर एड्स नहीं चाहिए तो क्या करने का, इफ आई डोंट वांट एड्स टू हैपन टू मी, व्हाट आई शुड बी डूइंग, I should not be having any physical contact with any person. If a person is having, they should be using certain protections for it. Apart from that, there are certain medicines one can try to use. And especially जब हम blood test करवाने जाते हैं तो पता है नया इंजेक्शन खुलता है, so अभी पहले के जमाने में ये नहीं था, I'm talking like almost 40 years back, 40-45 years back. इंजेक्शन तो एक को लगाया ना तो वो दूसरे को ऐसे ही लगा देते थे। अब प्रॉब्लम क्या था कि भाई एक से दूसरा जब इंजेक्शन लगाते हैं तो एक पर्सन को एड्स है तो वही इंजेक्शन आप दूसरे में इन्फ्यूज कर रहे हो तो उसको भी हो जाता। फिर तब से पता चला जब एड्स के केसेस बढ़ने लगे कि भाई इसको हमें फ्रेश इंजेक्शन ही लेना है, so we should not be using injections which are already been used for other patients. It should be, needles should be properly sterilized. Okay, so that's how it is. How we can prevent it? Donating blood में बहुत ध्यान रखना है कि सब कुछ फ्रेश यूज हो। सबसे ज्यादा जब हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं ना तो कई बार क्या होता है वो आपको वो असेंबली पूरा तैयार करके रखते बुला देते आ जाओ, अब तुमको नहीं पता जो निडल इन्फ्यूज कर रहे हैं ना ब्लड लेने के लिए वो फ्रेश है या नहीं। तो एक रिक्वेस्ट करने का कि भाई हम आएंगे लेकिन you have to be very cautious about your instruments. It should be perfectly sterilized and the new fresh one should be used. आपको पता है एड्स है या नहीं वो कैसे जाना जाता है? How do they predict? There are several people ना to donate the blood. आप डोनेट करते हैं तो लेते हैं लेकिन फिर क्या होता है कैसे पता चलेगा कि एड्स है या नहीं? एड्स का टेस्ट आने में एटलीस्ट एक दिन तो लगेगा, एलिसा टेस्ट बोलते हैं उससे। वैसे एक इतना लिक्विड होता है, थोड़ा सा पहले ड्रॉप लेंगे, आपको बोले कि वो लिक्विड में डाल, अगर आपका ड्रॉप नीचे चला गया तो एड्स नहीं, अगर ऊपर तैरता रहा तो एड्स है। सिंपल, ठीक है? तो इस हिसाब से करते हैं। चलो नेक्स्ट वी हैव इज पोलियो। पोलियो ना डायरेक्टली अफेक्ट्स योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, और पैर पतले हो जाते हैं, चल नहीं सकते हैं, थोड़ा सा ये है। योर नॉर्मल लेग्स एंड हैंड्स विल नॉट वर्क इफ यू हैव पोलियो। पोलियो के बच्चे बहुत ही वीक होते हैं और उनकी जो लिम्स, हाथ और पैर को लिम्स बोलते हैं, फोरलिम्ब एंड हाइंड लिम्स। तो ये जो लिम्स होती है ना वो बड़ी पतली होती है, वीक होती है, जिसपे बॉडी वेट नहीं रह सकता। So this is what occurs when a person has polio. क्या करना चाहिए? मैम उसका कॉज क्या है? नहीं, हमें सिंपली उसका वैक्सीनेशन ही ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा है कि अगर पोलियो हाई लेवल पे हो गया तो वॉमिटिंग है, तो ऐसे भी नॉर्मल सिम्टम्स है, वॉमिटिंग, नॉजियाटिक फील करोगे आप, फीवर आ जाएगा, बॉडी स्टिफ हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। मैम मैं कॉज पूछ रही, मतलब वो किस चीज से, किस वायरस से या फिर किस इंसेक्ट से होता है? बेटा पोलियो किससे होता है वो आपने लिस्ट नहीं देखो है? लिस्ट बताया था मैंने, 3 मैंने इमेजेस भेजे थे। यस मैम। वो देख लो, मिल जाएगा आंसर। पोलियोमाइलिटिस, हाँ चलो भाई क्लास में सबको पता है, ऑफलाइन वालों को, के वायरस से होता है।
Anyways, so yes, this is the only option. There are many campaigns which have arrived, जिसे कहते हैं pulse polio immunization program. Pulse polio immunization program is one of the important topic which you will be studying. This is important, pulse polio immunization. अभी पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन में क्या था, देयर वाज अ सिंगल डे हेल्थ प्रोजेक्ट. ये बेसिकली एक हेल्थ प्रोजेक्ट है जो लाया गया था वंस पता चला कि बहुत लोगों को पोलियो हो रहा है. अब उसके बाद in 1995, in December 1995, देखो in December 1995, PPIP, capital PPIP was conducted from our country. From our country. Full stop. This program uses oral polio vaccine. This program uses oral polio vaccine. Full stop. As per National Immunization IMMUNISATION immunization schedule. As per National Immunization Schedule. ब्रैकेट में लिखना है कैपिटल में NIS. A dose of 3 drops. A dose of 3 drops. ब्रैकेट में लिखो 0.5 ml, क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है इसलिए. Is given orally, bracket close, is given orally to the child. एक मिनट. one dose each at 1.5, 2.5 and 3.5 months age. MONTH'(s) months age. Full stop. And Sorry? can you repeat the spelling? 1 dose each at 1.5, 2.5 and 3.5 months. MONTH'(s) months age. आप लोग लिखो सब लोग. A booster dose is given at उतना छोड़ दो, आगे लिखो फुल स्टॉप करके. A booster dose is given at 1.5 year. चलो ये जो पूरा है ना, इसका मैं फोटो तुमको ग्रुप में भेज, तुम लोगों को उसमें से एम
ऑफ दिस प्रोग्राम और उसके ऊपर के 2 पैराग्राफ लिखने हैं। मैं पूरा भेजूंगी, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। ए में 2 सेंटेंस है और उसके ऊपर के 2 छोटे छोटे पैराग्राफ, वो अलाइन करके लिख देना। If you have failed to write with me, you will get this particular notes. Okay, so don't worry. चलो, drifting to next disease, tuberculosis, TB, absolutely related to your lungs. Tuberculosis लिखना अभी नहीं है, you can listen to me. Related to your lungs, this disease was discovered by Robert Koch, and it was discovered somewhere in 1882. फिर दवाई आई in 1905, इतना टाइम लगा, और उनको नोबेल प्राइज भी मिला इसके लिए। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं? खाना नहीं खा सकते, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, भूखी नहीं लगेगी, और वेट उसकी वजह से कम होने लगेगा। अच्छा, लंग का डिसीज है, लंग में क्या होगा? तो लंग जो नॉर्मल होता है ना, उससे फूल जाएगा। ठीक है, खांसी आती रहेगी, ब्लड माइट कम व्हेन यू आर कॉफिंग। So these are the symptoms. प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? आइसोलेशन में रहना है, और टीबी के पेशेंट अगर पता है कि इसको है, थोड़ा सा दूर रहो उनसे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओवर क्राउडिंग जोन में मत जाओ। सब ऑलमोस्ट सारे डिसीज यही कह रहे हैं, बहुत क्राउड वाली जगह पे मत जाओ, आप पक्का कुछ ना कुछ डिसीज लेके आओगे घर पे। देन कम्स कंट्रोल कैसे करें? तो उसके लिए मेडिसिन के नाम दिए हैं जो हमारे करिकुलम में है। ठीक है, तो वो मेडिसिन लेके ही कंट्रोल हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। देन कम्स कॉलेरा। अच्छा, कॉलेरा किससे होता है? विब्रियो कॉलेरिसिस नहीं दिया, विब्रियो कॉलेरिसिस। कॉलेरा होता मतलब व्हाट इज द मोड जिससे कॉलेरा होता है? एयर, वाटर, फूड, वाटर, राइट, वाटर से होता है। अच्छा, कॉलेरा होगा तो क्या होगा? ये कॉन्स्टेंटली वॉमिट, उतना वॉमिट के ब्लड निकलेगा। नेक्स्ट कम्स दैट आपकी बॉडी से ना फ्लूइड जो होता है ना, वो कम होता जाएगा, बॉडी में वाटर कंटेंट कम होता जाएगा, डिहाइड्रेट होता जाएगा। आपका ये जो आई है ना, वो श्रंक होकर छोटा हो जाएगा, और सीवियर कंडीशन में पेशेंट मर भी जाता है। तो करना क्या है भाई? जो पानी है, और जिसमें इवन आप पानी को यूज करके जिसमें खाना भी बना रहे हो, बॉइल वाटर यूज करो। यूज बॉइल वाटर एंड you will have no diseases. Understood? And next is ORSQ. Then comes diarrhea. वो तो कभी ना कभी किसी को हुआ ही होगा। ठीक है? Ma'am, हाँ, ma'am, but excessive boiled water is also not good. तो हमने कहा excessive boiled water. We are not talking about ourselves, beta, who are getting the water of Narmada. Pure, because Narmada is chlorinated water. Okay, so from that things are been removed. Here we are talking about all the people who are living in a remote area, or let's say village area or rural area, who don't have the facility to even purify the water. They sometimes directly drink the water of river, in which several other activities are also been ongoing. Okay? Like washing the clothes and residing of other animals and their remnants and their fecal waste. So you don't know how that water is. Understood? Yes, ma'am. Yeah. Diarrhea. My diarrhea is caused absolutely due to food poisoning, without any sort of glitch in mind. ठीक है, तो डायरिया होता है तो आप क्या करते हो? क्या करते हैं मतलब, या तो देयर इज लूज मोशंस हैपनिंग, या तो वॉमिटिंग होगा, नॉजियाटिक फील होगा, खा नहीं पाओगे कुछ। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए क्या खिलाता है मम्मी? खिलाता है नहीं है? पोमोग्रेनेट, यस, पोमोग्रेनेट जूस ले सकते हो। इसके अलावा यू कैन ऑलवेज टेक दही बात, कॉफी देते हैं। या सो दिस विल ट्राई टू हाइड्रेट यू अप, यही कर सकते हैं। अच्छा, ये ना हो ऐसा हम क्या कर सकते हैं? मतलब व्हाट कैन बी प्रिवेंटिव मेजर्स? तो जो खा रहे हैं ना, उसको गर्म करके जरा खाओ,
ट्राई के आपने सुबह का खाना रात को मत खाओ या नेक्स्ट डे मत खाओ। तीसरा तीसरा था मतलब डोंट ईट स्टेल फूड, कहने का मतलब है। देन कम्स दैट हाइजीन सेंस, खाना बनाया है ना तो बहुत सारी मक्खियां भी कभी घूम रही होती है उस पे, तो दैट इज अनहाइजीनिक। देन कम्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं ना, उसको प्रॉपरली वॉश करके यूज करना चाहिए। ठीक है, थैंक्स टू कोरोना मेरे घर में तो 2 बार होता है washing of the vegetable. I mean, once the moment it comes, it's been washed in salt water, and the moment we use it, also I have a habit of washing it. So if you come and arrive at my home, you will never see wax on my apple, right? But when I go to other people's house, I see, like, you know, I can see my face in apple. That is due to the wax present on it. And then they also offer me, why don't you take a bite of it? And I am like, I am fasting today. You don't have any option to deny, na? They are just, I mean, out of courtesy, they are giving you, but they don't know that what are your hygiene sense. So one needs to take care about it. Always try to boil certain things and eat, even in fruits. That will be helpful. ORS पीने में देते हैं, that's already been said, so I don't have anything to say. Last we have is peptic ulcer. Peptic ulcer is pretty painful. हमारी जो stomach होती है ना, intestine especially, उसमें ना बोलते हैं ना छोटी छोटी, मतलब what we say गुजराती ही से चांदी पड़ी जो, राइट, जो लाइक मुंह में होता है ना अल्सर, वो अल्सर उधर होता है। तो क्या होता है, डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता, फिर क्या होता है, वो स्वोलन कर देता है धीरे धीरे इंटेस्टाइन को, और फिर वो फट जाता है, तो पर्सन डाइज आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं चल रहा है ना आपका, तो लार्ज नहीं चलेगा, तो आपका फीकल वेस्ट जाएगा कैसा, कुछ खा नहीं सकते ना कुछ पी सकते हो ना पी सकते हो, तो किडनी भी डिमांड करेगी, फिर किडनी फेलियर, सो वन बाय वन योर ऑर्गन विल शट डाउन एंड वन विल डाई। इसकी ऑपरेशन नहीं होती है, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। So these are the diseases which were there. Hereby I conclude the chapter 13. We are expecting a course reduction in Gujarat board as well, as it has arrived in CBSE, but we are waiting for a final call for it. चलो, क्या chapter 2? हाँ, मेरे को तो करवाना ही नहीं है तुमको चैप्टर। चलो, पेन और पेपर पीछे ना, बुक के पीछे नहीं, मुझे तुम पेन दे दो। चलो, मैंने बातें करने को नहीं बोला है, जिसका नाम आए प्लीज आ जाना। जयानी सोलंकी कौन है एचडी कापड़िया में? इसका हाथ रखो। कृष्णा श्री, मैंने 2.5। खुशी, ये ले इसके खुशी मिस्त्री 14। रुद्र Bhatt. Yes, ma'am. Rudra, you have got 28 marks out of 30. Kindly collect your paper, huh, beta? Yes, ma'am. Yeah. मैम आपने कितने बोले? 28 to 8. Yes, ma'am. Then who is Ved Panchal? Me. Ved, Yes, ma'am. is Ved Panchal present online? Yes, ma'am. You have scored 23 marks. Ma'am, how कितने में से? 30 में से बेटा 23. We have Vipul.
विपुल देसाई तुम्हारा है? अरे तो क्लास का तो थोड़ी ना चलेगा। सोनी विश्वा, Yes. you have scored 26 marks. Okay. We have Dhruvi Thanki. Dhruvi Thanki. Mandar Vyas. $18 marks. देवांश सोलंकी, सबसे ज्यादा है बेटा 9.5। मेरे को क्या देखना है, तुमको देखना है। कृष्णा, कृष्णा मास्टर, यू आर देयर। त्रिशा, हाँ त्रिशा बेटा, व्हाट इज दिस? इज इट योर पेपर? तो आई दिस मच लूंगा। मैम रिजल्ट ग्रुप में कब भेजेंगे? क्या बेटा? रिजल्ट ग्रुप में कब भेजेंगे साइंस का? पता नहीं है, साक्षी मैम से पूछ लो। ओके मैम। वी हैव देसाई वृषल, वृषल है नूतन स्कूल में। देव त्रिवेदी, देव त्रिवेदी है एजी स्कूल का कोई बच्चा? उसके सबसे हाईएस्ट है 29.5। हाँ एग्जाम तो ऑफलाइन दी है, बच्चा ऑनलाइन, क्योंकि एसपीजीटी का लेके आया ना, खुद घर पे दी होती उसने एग्जाम, तो उसकी आंसर शीट आती ना, पर ये तुम लोग के साथ ही एग्जाम देके गया है। सोनी प्रीशा, $24.5। माही पंचाल है कोई? माही पंचाल प्रेजेंट, 26 मार्क्स। बेटा इसमें रखो ना, इसके ऊपर प्रॉपर्ली बातें नहीं चाहिए। भारती राजपूत, nice presentation, you can still work hard, 23.5। ये कौन है? त्रिशा प्रजापति, डीएल रावल। त्रिशा स्कोर 28 मार्क्स, गुड बेटा। 2 मार्क कहाँ गया वो देख लेना। देवांशी 25.5, कर सकते हो। तुम क्या मिस्टेक करते हो? सही कर रहे हो, देखो तो सही, तुमने इधर 600 के बदले 200 लिखा है। यू कैलकुलेटेड राइट, ठीक है, और उसमें तुम्हारे देखो तो सही बेटा, क्या मार्क्स तुम निकाल रहे हो। ये कौन है? दिव्यम पटेल, आता है पेपर, आता है। 23 मार्क्स। जूही पटेल 20 मार्क्स, नॉट गुड। ऋषि दर्जी, निर्माण हाई स्कूल, कोई निर्माण का बच्चा है? पटेल विश्वा, $19। मीत पटेल 16। आप में से कोई मीत नहीं है ना? एचपी
कृष्णा कॉन्ट्रैक्टर, नॉट गुड। तन्वी, तन्वी पेडकर, ईशानी, क्यों इतने ज्यादा है बेटा? डबल परिक, if I hear a single noise, you will sit for 1 more hour, and online also student will study for 1 more hour. ठीक है? डबल परिक 6 मार्क, ध्रुव मिलन, (26) जो बच्चों के 15 से नीचे मार्क्स है, every person who is scoring less than 15 is subjected to write this paper 2 times, and once you will write it entire paper seeing the book, and second time you will prepare that and write it. Okay, today is Tuesday, right? Next Tuesday you will be submitting it here. हाँ बोलो 2 टाइम, 15 से कम मार्क्स नहीं लिखना है। मैम मैं मार्क्स आप रिपीट कर सकते हो? क्या 1 मिनट, क्या बेटा क्या नाम है आपका? मैम वेद। वेद ना, वेद का 23 है। ओके मैम। चलो बेटा 1 मिनट ये दे दो। मैम हाँ मैम मेरे मार्क्स नहीं आए। बेटा मेरे पास जितने पेपर्स थे वो मैंने चेक कर लिए, अब मेरे पास कोई पेपर है नहीं। आप एसपीजीडी पे आके एक बार देख जाना। ओके आई हैव दिस पंच, जो चेक पेपर्स है तो ले जाना अगर आपका इसमें है। चलो बाय बाय।